Hello to class 9th and class 9. Today we are doing economic application and the lesson is lesson number 6. Lesson 6. The name of lesson 6 is sectors in Indian economy. So this is the name of our chapter, Sectors of Indian Economy. In this chapter we are going to read about the different sectors, different areas of Indian economy. So the different areas can be divided on the basis of different things. So when we talk about the sectors of Indian economy, so sectors can be divided on the basis of type of productive activity, type of productive activity, right now I'm just drawing it and then I explain it to you. So under this type, under this head you have primary, secondary, tertiary. Primary, secondary and tertiary, right? The another is on the basis of type of economy, rural, urban, and the third base is your ownership. Public, private. So these are the bases. So now we will talk about this. Now see, we are doing lesson number 6 and the lesson is sectors in Indian economy. Now we are going to read the different parts of Indian economy. Now, so see, economy do not have any parts. But in economics we divide the economy on the basis of certain things. कुछ किसी चीज के आधार पे, बेसिस मीन्स आधार, किसी चीज के आधार पे हम इकोनॉमी को मतलब देश को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं. सो द फर्स्ट बेस इज योर टाइप ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी. नाउ व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, किस तरह का काम चल रहा है, इसके आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिवाइड इन इकोनॉमी एंड वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स. सो इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. As far as the productive activity is concerned, this is primary, secondary and tertiary. Right? Now we will be reading कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, आगे जाके भी हम इसे पढ़ेंगे. राइट? द सेकेंड base is the type of economy. What type of economy do we have? What type of economy do we have? What type of an area do we have? What type of development do we have? So here we have the rural economy and the urban economy. अगर हमारे यहाँ गांव वाला एरिया ज़्यादा है तो that is going to be rural economy. अगर शहर वाला एरिया ज़्यादा है that is going to be urban economy. This is also I'm going to explain. तो इसके अंदर आपके पास दो तरह की इकोनॉमीज आ गई, सारे सेक्टर्स हैं. राइट? नाउ थर्ड बेस इज ओनरशिप. ओनरशिप मतलब मालिक कौन है. Now, under the base of ownership, we can divide the Indian economy again into 2 parts: public economy and private economy. Public sector and private sector. Rural sector, urban sector. Public sector, private sector. Primary sector, secondary sector, tertiary sector. इन सब के साथ sector word लग जाएगा. तो ये क्या है? These are the things we are going to read in this chapter. This is a long chapter, right? This is what a long chapter. तो हम इसे धीरे धीरे complete करेंगे. So all together 3, 4, 5, 6, 7. We are going to read what 7 types of economies. Right. So in this chapter we are going to read that what are the different sectors of Indian economy on the basis of different things, on the basis of different kinds of activities. So as far as productive activities are concerned, Indian economy can be divided into 3 parts: primary sector, secondary sector and tertiary sector. As far as type of economy is concerned, we can divide it into rural sector, urban sector. And as far as ownership is concerned, we can divide it into public sector, private sector. Right? So, the main sector of the region of Indian economy can be divided as follows. So, this is what we are going to start with. So, first of all, we will start with type of productive activities: primary, secondary, tertiary. So, we are going to do this part today. Right? So, we will start with it.
So we'll do first one, that is primary sector. Now important thing, what does this word primary means? Primary means important. Primary means what? Important. So this sector is basically what? A very very important sector, right? A very very important sector. अब ये sector है क्या? इसमें आता क्या है? तो इसमें बोलते हैं कि एग्रीकल्चर, इसमें मेन एक्टिविटी जो आपकी आती है प्राइवेट सेक्टर की आती है, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो क्या है? एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर occupies a very very important place in the economic life of our country. People of India, most people of the India are still engaged in agriculture activity or in primary activity. तो जितनी भी चीजें किससे जुड़ी हुई है? एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है. ठीक है. All activities connected to land comes in primary sector. तो जितनी भी चीजें जमीन से जुड़ी हुई हैं, लैंड से जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी किस में आती है? प्राइमरी सेक्टर में आती है. एग्रीकल्चर इज बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी. सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की नहीं, एग्रीकल्चर बैकबोन है, किसी भी तरह की इकोनॉमी की बैकबोन होती है. विदाउट द एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैन नॉट हैव इट्स फूड, इकोनॉमी कैन नॉट हैव रॉ मटेरियल, इकोनॉमी कैन नॉट डेवलप. सो एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. सो इंडियन इकोनॉमी में अगर हम देखें कि प्रोडक्शन एक्टिविटी किस तरह की हो रही है, तो फर्स्ट जो एक्टिव सेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा? प्राइमरी सेक्टर आएगा, राइट. एग्रीकल्चर इन अवर कंट्री यूज्ड टू बी द सोर्स ऑफ अबाउट 70% of the country's population before independence. Before independence, around 70% people were engaged in agriculture activities, and after independence, at the present scenario, around 50% people are engaged in what? एग्रीकल्चर एक्टिविटी. इसका मतलब ये है कि आज की डेट में 50% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं. इट इज अ लार्ज सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है. और इट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल लोगों की लाइफ में, देश में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ये, ठीक है. ये आपके प्राइमरी सेक्टर क्या क्या आपको देता है? रॉ मटेरियल, फूड, फॉडर. फॉडर क्या होता है? गाय वगैरह का चारा जो होता है, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट देता है, मतलब लोगों को नौकरी देता है. ये सारी चीजें बिना एग्रीकल्चर सेक्टर के आप कुछ सोच ही नहीं सकते हो. एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है. तो इंडियन एग्रीकल्चर, इसमें माइनिंग भी आता है. जितनी भी हम लोहा निकालते हैं या बाकी कोयला निकाल रहे हैं या कुछ भी बॉक्साइट निकाल रहे हैं, मैग्नीशियम निकाल रहे हैं, कोई भी हम जो मिनरल अर्थ से निकालते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? प्राइमरी सेक्टर. सो प्राइमरी मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अंडर प्राइमरी सेक्टर व्हाट कम्स इज एग्रीकल्चर एंड ऑल द एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड टू द लैंड, ठीक है. इसके अलावा एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज भी इसी में आती है. एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज. अब एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज क्या होती है? एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज वो होती है जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है. जैसे कि एग्जांपल क्या हो सकता है? फिशरी, मछली पालना, पोल्ट्री, POULTRY, इसमें हम क्या मुर्गियां वगैरह पालते हैं. देन डेयरी एक्सेट्रा. सो ये सारी चीजें किसमें आती है? आपका एग्रीकल्चर या सॉरी प्राइमरी सेक्टर में आती है. तो फर्स्ट सेक्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है. अराउंड कितने लोग अभी प्राइमरी सेक्टर पे काम करते हैं इंडिया में? अराउंड 50% पीपल आर स्टिल वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. अब हम पढ़ेंगे कि भारत का जो नेचर है इंडियन एग्रीकल्चर का वो क्या है. तो मैंने आपको पहले ही बताया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अगर बोलो कि इंडियन एग्रीकल्चर का नेचर क्या है, इसका मतलब ये कि क्या खास बातें हैं. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर. तो क्या खास बातें? एग्रीकल्चर इज व्हाट वेरी वेरी ओवरक्राउडेड है हमारा एग्रीकल्चर. ओवरक्राउडेड है मतलब हमारे एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग हैं, जगह कम है काम करने के लिए, और ज्यादा लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, जगह कम है. तो इसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर क्या है? बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड, ठीक है. वी डोंट हैव गुड मशीन्स, वी डोंट हैव अपडेटेड टेक्नोलॉजी, वी डोंट हैव ट्रेन्ड फार्मर्स, वी डोंट हैव फर्टिलाइजर्स, सीड्स,
टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ट्रेनिंग, नथिंग. सो बैकवर्ड भी है. पुअर इरिगेशन सिस्टम है. पुअर इरिगेशन सिस्टम, हमारा जो पानी चारने का सिस्टम है इरिगेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी पुअर. लो प्रोडक्टिविटी है. लो प्रोडक्टिविटी मतलब जमीन के बड़े से एरिया में बहुत कम उग रहा है या उगाया जा रहा है. ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. लो मैकेनाइजेशन. लो मैकेनाइजेशन मतलब हमारा जो मैकेनाइजेशन है बहुत लो है, मतलब हमारे यहाँ मशीन्स की बहुत ज़्यादा कमी है. हम अभी भी ऑब्सोलीट आउटडेटेड मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं. दीज आर व्हाट सम ऑफ द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ठीक है, you can see this. A majority of farmers continue to use obsolete technique. मैंने आपको बताया अभी भी. Many of the farmers are still using obsolete technique. When I say obsolete technique, what does it mean? Obsolete means outdated. ऐसी techniques जो अब बिल्कुल चलन में नहीं है. People are not using the people of the farmers of the developed countries are not using those machines which we people are still using. हम अभी भी आप देखो गांव की तरफ if you people go, you will see कि वहाँ अभी भी plow use किया जा रहा है, मतलब हल से खेती की जा रही है. बल्कि ऐसी डेवलप कंट्रीज में हल तो कोई यूज़ करता ही नहीं है. लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में अभी भी गाँव की तरफ जाएं या बहुत अच्छे एरियाज में भी आप देखोगे तो हल को ही यूज़ किया जा रहा है. तो हल क्या है, एक ऑब्सोलीट टेक्निक है, एक आउटडेटेड टेक्निक है. तो ये कुछ खास बातें हैं हमारे एग्रीकल्चर की जो मैंने भी लिखी है. ये हमारा नेचर एग्रीकल्चर का. नेचर क्या है कि ओवर क्राउडेड है, मतलब ओवर क्राउडेड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं. बैकवर्ड है हमारा एग्रीकल्चर. पुअर इरिगेशन सिस्टम है. लो प्रोडक्टिविटी मतलब बड़े एरिया में कम उग रहा है. लो मैकेनाइजेशन मतलब यहाँ पे मशीन्स की बहुत ज़्यादा क्या है, कमी है. राइट, तो ये तो किसकी बात, नेचर की बात. अब ये बोल रहे हैं रोल ऑफ प्राइमरी सेक्टर. नाउ वी रीड रोल ऑफ प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, दैट मीन्स जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका क्या रोल है, व्हाट रोल डज इट प्ले, कितना इंपॉर्टेंट है वो देश के लिए, व्हाट रोल डज इट प्ले. तो फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम. कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम. व्हाट डज दिस मीन्स कि मतलब जो देश भर की इनकम है, जो पूरे देश की इनकम है, उसमें कितने हिस्सेदारी है एग्रीकल्चर की. तो कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान देश की इनकम में किसका, एग्रीकल्चर का. तो ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, दो इट्स शेयर इन नेशनल इनकम हैज बीन डिक्रीजिंग स्टेडीली. द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी वाज 57%. ठीक है, अभी इसका कितना 15% है. सो इसका शेयर कितना है, 15% इन जीडीपी. अब आप बोलेंगे कि जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश की इनकम. सो देश किन चीज़ों से कमाता है, फैक्ट्री से कमाता है, खेतों से कमाता है, सर्विसेज से कमाता है, सारी चीज़ों से पैसा कमाता है. तो इसमें एग्रीकल्चर से कितनी कमाई है. सो पूरी देश की पूरी इनकम में, देश के जीडीपी में 15% कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है. वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर से 15% आता है. तो पहली बात तो ये होगी, yes, that the primary sector plays a very important role, plays a very crucial role in national income. So it contributes around 15% in our national income. Next is your employment. Employment मतलब job. Means what? Job. So many people in India, many people get job from where? Many people get job from in employment. In agriculture. They get work in agriculture. Many laborers, you will see many laborers are working in agriculture fields. They are working there. They are getting work. They are earning from there. And not only the agriculture, सिर्फ agriculture का मतलब प्राइमरी सेक्टर का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, खेती नहीं, उससे जुड़ी जो बाकी चीज़ें हैं वो भी एग्रीकल्चर का हिस्सा आती है, हिस्से है. जैसे कि आपकी पोल्ट्री, फिशिंग, डेयरी, अलाइड एक्टिविटीज, एनिमल हस्बेंड्री, सिल्क वॉर्म्स जो होता है, सेरिकल्चर कहते हैं हम, सिल्क रेशम की खेती करते हैं, सेरिकल्चर हो गया. ये सारी चीज़ें, फ्लोरा, हॉर्टिकल्चर हो गया, वो फलों को उगाना, फूलों को उगाना, एवरीथिंग किस में आता है, आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है. यहाँ तक कि माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आता है. तो ये क्या करता है, आपका जो प्राइमरी सेक्टर है ये बहुत लोगों को क्या देता है, जॉब देता
है। सो एग्रीकल्चर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क टू एन ओवरवेलम मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मासेस। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैंने आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं होती, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो बाकी चीज़ें भी है वो भी इसमें आती है, जैसे माइनिंग हो गया, डेयरी हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, तो उन सब चीज़ों में भी क्या है, द पीपल आर गेटिंग जॉब इन इंडिया। सो वी कैन से दैट प्राइमरी सेक्टर इज गिविंग जॉब टू द इंडियन पीपल इन ग्रेट नंबर। नेक्स्ट इज फूड एंड फॉडर, थर्ड इज फूड एंड फॉडर। Now what is food and fodder? Food is खाना for human beings. ह्यूमन बींग्स को अपना खाना अनाज कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर को मिलता है। और फॉडर क्या होता है, एनिमल्स का फूड। तो ये जो चारा कहते हैं जिसको चारा, एनिमल्स का फूड। तो एनिमल्स को भी खाना मिलता है एग्रीकल्चर से और ह्यूमंस को भी खाना मिलता है एग्रीकल्चर से। सो एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू अस एंड टू एनिमल्स ऑल्सो। फॉरेन ट्रेड, FOREIGN, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, योर इंटरनेशनल बिजनेस। सो व्हेन वी आर ग्रोइंग समथिंग इन अवर फील्ड्स, हम उनमें जो चीज़ें उगा रहे हैं खेतों में उसको बहुत सारा वी आर एक्सपोर्टिंग ऑल्सो। सो इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू एग्रीकल्चर। वी आर एक्सपोर्टिंग मेनी थिंग्स। एक्सपोर्ट मतलब होता है जब हम अपना देश का माल बाहर के देशों को बेचते हैं। जैसे कि अगर आपके देखा हो तो इंडिया की चाय पत्ती इज वेरी फेमस, इंडियन बासमती राइस इज ऑल्सो वेरी फेमस, इंडियन लीची, इंडियन एप्पल्स, these all are very famous, Indian coconuts are very famous। so हम क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, we sell it to the other countries। और हम बेचते हैं तो हमें क्या मिलता है इसके बदले में, we get money, right? we get foreign exchange, we get money। और इस मनी से हम क्या करते हैं, आगे अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अपना फॉरेन ट्रेड जो है किसकी वजह से कर पा रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर फॉरेन ट्रेड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब है कि दैट योर इंडस्ट्रीज, व्हाटएवर इंडस्ट्रीज यू हैव, व्हाटएवर फैक्ट्रीज यू हैव, you are getting raw material from agriculture only। that means agriculture is the main source of raw material for the industrial activities and for the industrial development। so in India agriculture plays an important role in the industrial development। agriculture provides raw material to industry। जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल मिल्स अगर हैं, मतलब कि अगर कॉटन के कपड़े बनने की मिल है तो वहाँ पे कॉटन आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, आपको रुई रॉ मटेरियल चाहिए। शुगर केन, जो शुगर की अगर मिल है तो शुगर की मिल में आपको क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए एज अ रॉ मटेरियल। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है, यू गेट दीज थिंग्स फ्रॉम एग्रीकल्चर और फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर ओनली। सो इंडस्ट्रीज में कोई काम नहीं होगा अगर आपको एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। जैसे कॉटन की अगर आपकी इंडस्ट्री है, कॉटन में टेक्सटाइल की, कॉटन के कपड़े की अगर इंडस्ट्री है तो उसके लिए कॉटन आपको कहाँ से मिलेगा, खेतों से मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा, राइट। सिक्स्थ इज इंटरनेशनल रोल इन नेशनल इकोनॉमी। ये हम कुछ ही करेंगे, सारे करने की जरूरत नहीं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रीब्यूट डोमेस्टिक ट्रेड, ये भी इजी है। फलक्रम ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये अच्छा है। फलक्रम, फलक्रम ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अब फलक्रम ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट, यू नो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन इज अ मीडियम थ्रू विच गुड्स कैन बी सेंट एंड पीपल कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम चीज़ों को, सामान को या लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो हम किसका what do we use? We use transportation। Transportation could be land transportation, water transportation, air transportation। So what they are trying to say is this कि जो ये आपका प्राइमरी सेक्टर है वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें उगती हैं, खेतों में चीज़ें उग रही हैं या आप खेतों से जुड़ी हुई चीज़ें कर रहे हो, जैसे कि डेयरी वगैरह का काम कर रहे हो, तो वो सारा का सारा काम, वो सारी का सारी चीज़ जब खेतों में उगती है या डेयरी से जब आपके मिल्क प्रोडक्ट निकलते हैं या आपको अगर फिशरी हो रही है वो भी आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है। तो ये सारी चीज़ें आप ये नीड टू व्हाट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल। आपको ये सब चीज़ें लोगों को बांटनी है। हाउ? इन द मार्केट, थ्रू मार्केट यू आर गोइंग टू सेल दीज थिंग, यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दीज थिंग्स टू द पीपल थ्रू मार्केट। और मार्केट तक आप अपना सामान कैसे पहुंचाते हो? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की मदद से। सो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आपकी काम करती है या चल रही है किसकी वजह से? आपकी इंडस्ट्री, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर की वजह से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेसिकली फलक्रम ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि बिना प्राइमरी सेक्टर के ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। तो फलक्रम क्या है? फलक्रम का मतलब ये हो गया, ये सपोर्ट है, ठीक है। मतलब प्राइमरी सेक्टर सपोर्ट है किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में आपको रेलवे वगैरह सब कुछ आएगा। जब आपका माल जब रेडी हो जाता है,
when your crops get ready in the fields, you harvest them and then you sold them. अब उन्हें बेचने के लिए आप जब बेचते हैं तो how do you sell them? You need to carry it to the market. And how do you carry them? You carry them with the help of buses, trucks, railways. इन सब चीज़ों से आप उसे कैरी करते हो. तो ट्रांसपोर्ट जो आपकी है इंडस्ट्री है वो किसकी वजह से चल पा रही है? वो चल पा रही है आपकी प्राइवेट सेक्टर की वजह से. सो दिस इज योर few important role that is played by agriculture. ठीक है, अब ये हमने इतना कर लिया है. सो अब रीजन बोल रहे हैं कि लो प्रोडक्टिविटी की रीजन क्या है, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास. सो आई बिलीव चिल्ड्रन दिस इज क्लियर टू यू. तो हम अभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स पढ़ेंगे 1-2 दिन, देन विल मूव फॉरवर्ड. एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसे हम पढ़ेंगे एंड विल टेक अराउंड पूरा का पूरा वीक लग जाएगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में. Alright children, then keep completing your notes and I'll see you soon in the next video.